شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ شامل خدمت میں بہن بھائی اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ابھی ہماری بات ایلین کے تعلق سے ختم نہیں ہوئی۔ دانیل شیروں کی ماند میں ہے اور شیر اس کو پھاڑتے نہیں، اس پر اٹیک نہیں کرتے، اور دانیل کہتا ہے بادشاہ کو کہ میرے خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ وہ دانیل کا فرشتہ تھا، دانیل کا ایلین تھا، دانیل کی پاور تھی، جو وہ گھٹنے ٹیکتا تھا، جو وہ دعا کرتا تھا، جس کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرتا تھا، وہی روح اس کے پاس آئی اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ صدرک میثق عبدنجو جس روح کے سامنے جسے وہ خدا مانتے تھے، جس کے حضور وہ گھٹنے ٹیکتے تھے، وہی فرشتہ ان کے لیے آگ کی بھٹی میں آ گیا۔ وہی داؤد جب وہ ستائش کرتا ہے صبح دوپہر شام، جس کے گن گاتا ہے، جس کی تعریف کرتا ہے، جب داؤد کا ٹاکرا ہوتا ہے شیر کے ساتھ، ریچھ کے ساتھ، تو وہی فرشتہ داؤد کو پاور دیتا ہے، دکھائی دیتے ہیں داؤد کے ہاتھ، اور چیرا جاتا ہے شیر، مارا جاتا ہے بھیڑیا، ریچھ، مارا جاتا ہے جاتی جولیت۔ داؤد کا کمال نہیں ہے؟ وہی سمسون جو قاضی تھا، جو ممسو تھا، وہ سائن تھا اس کا، جب وہ دیکھتا تھا اپنے اس خدا کو۔ خدا کا مطلب پہلے جانیے، خدا کا مطلب ہے دیوتا، خدا کا مطلب ہے جسے پوجا جاتا ہے۔ بھلے کو پتھر کا صنم بنا لے، بھلے لکڑی کا بنا لے، اور بھلے اس کائنات کے خالق و مالک کو اپنا خدا بنا لے۔ جس کو خدا آپ بنا لیتے ہیں وہی آپ کی پروٹیکشن کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ نے غلط کسی کو خدا بنا لیا، خدا تو خدا ہے، آپ کسی کو بھی، ابلیس کو بھی بائبل کہتی ہے کہ وہ بھی اس جہان کا خدا ہے۔ آپ کسی کو بھی خدا بنا سکتے ہیں۔ جس کو آپ خدا بنائیں گے وہ آپ کی مدد کو آئے گا۔ اب خرابی کیا ہے؟ ابلیس بھی خدا ہے، ابلیس بھی اپنے ماننے والوں کی ہیلپ کرتا ہے، اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کرتا ہے، اپنے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اس کی پروٹیکشن ساتھ محدود ہے، وقتی ہے۔ جو زندہ خدا کو، قادر مطلق خدا کو، الفا اومیگا، اول و آخر کو، ابتدا اور انتہا کو جب مانا جاتا ہے، تو جیسے وہ اول و آخر ہے، اسی طرح وہ اپنے ماننے والوں کو بھی اول و آخر بنا دیتا ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ورنہ یہ نہ آپ سمجھیں کہ ابلیس کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ اس جہان کا خدا ہے، لیکن اس جہان کی جو ناف ہے، جو دھنی ہے، جو انول ہے، جو سینٹر ہے، وہ اس دنیا کا جو سینٹر ہے وہ اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل کو نہیں کہا گیا کہ یہ جگہ کسی اور کی ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے وہ جگہ اپنے لیے چن لی ہے۔ اور سلیمان کہتا ہے آسمان تیرا تخت اور یہ جگہ تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔
और इब्राहिम को खुदा कहता है चल मैं तुझे जगह दिखाऊं जहां तूने कुर्बानी देनी है, आ मैं तुझे वो जगह दिखाऊं। और वो जगह कहां पे है? इस्राएल में। घर से भागा है। शाऊल जो है चाहता है कि एसाव जो है वो याकूब को मार देना चाहता है, और याकूब की मां ने कहा कि तू भाग जा। जब वो एसाव से डरता हुआ भागा और रास्ते में थक गया और नींद आ गई, देर हो गई, सो गया। जब सोया है तो क्या देखता है कि फरिश्ते जो हैं वो जमीन पर उतर रहे हैं और फिर आसमान पर चढ़ रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं देखी गई जहां पर से आसमान से फरिश्ते आ भी रहे हैं और फिर जमीन से जा भी रहे हैं। वो कौन सी जगह है जहां पर फरिश्ते उतरते हैं और फिर जाते हैं? वो इस्राएल है। और फिर इब्राहिम उसी एरिया में है, फरिश्ते उसको विजिट कर रहे हैं। दाऊद उसी एरिया में है, फरिश्ते आके उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। यरूशलेम उसी जगह पे है और फरिश्ते आके उसकी दीवारें गिरा रहे हैं। 5 रोटियां 2 मछलियां हैं और हाथ लगाया है उन रोटियों को। मसीह खुदावंद के हाथ से रोटियां बढ़ रही हैं। ये सारी जगह ये सारे काम उसी जगह पे हो रहे हैं। तालमूद बताती है कि किस तरह से खुदा सुलेमान की मदद फराहम करता था, जदाऊन की मदद फराहम करता है, समसून की मदद फराहम करता है, शाऊल की मदद फराहम करता है, शागिर्दों की मदद की जा रही है, अंबिया के साथ बातें हो रही हैं, याकूब के साथ बातें हो रही हैं। ये सारा कुछ एक ऐसी जगह है इस दुनिया में जो नाफ की मानद है, और वो है इस्राएल। इसलिए कहा गया कि मैं ये जगह तुझे और तेरी औलाद को, तेरी नस्ल को दूंगा। वहां पर फरिश्ते चलते फिरते हैं, वहां पर एलियंस चलते फिरते हैं, और खुदा ने कहा तेरे दाएं बाएं लोग गिर जाएंगे, तेरे दाएं बाएं लोग मारे जाएंगे, लेकिन तपाली वबा तेरे करीब नहीं आएगी। अब भी मैंने खबरों में सुना, कई लोगों का इतराज है। एक चैनल चलता है पाकिस्तान से, हकीकत टीवी, वो बंदा एक तरह से रो ही रहा है। वो कह रहा है कि जॉर्डन में भी इस तरह से हुआ, सऊदीया तक ये अर्थक्वेक के असरात देखे गए, सीरिया की ऐसी तैसी करके रख दी उन्होंने, वे एलियन आ गए हैं, तैस नैस करके रख दिया है। और तुर्की का क्या हाल हो गया। लेकिन वो कहता है इस्राएल में कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? देखो, वो जो हमेशा हमेशा अव्वल से आखिर, आखिर से अव्वल, जिसकी ना इब्तदा है, जिसकी ना इंतहा है, वो कहता है मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं, मुझसे पहले कोई खुदा ना था, मेरे बाद भी कोई खुदा ना होगा। वो है उस जगह का खुदा। वो है जो कहता है ये जगह मेरी है। वो है जो कहता है तू सो जाता है मैं जागता रहता हूं। वो है जो कहता है जो तुझे छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। वो है जो कहता है तेरी सूरत मैंने अपनी हथेली पे खोद रखी है। वो कहता है कि मैं तेरा परवरदिगार हूं, मैं तेरा राज़िक हूं, मैं तेरा निगहबान हूं। तो फिर मैंने पहले भी बात बताई है कि ये नहीं है कि इब्लीस इस जहान का खुदा नहीं। बाइबल ये फरमाती है कि इस जहान का खुदा है जिसने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया है। अब एक खुदा है जो आंखें खोलता है। मसीह ने कहा मेरा रूह तुम्हें गहरी बातें बताएगा, तह की बातें बताएगा, इल्म और इदराक से जो बाहर बातें हैं वो बताएगा।
यिर्मयाह को वो कहता है, तू मुझे पकार, मैं तुझे जवाब दूंगा, तुझे बड़ी बड़ी और गहरी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता, मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन उधर क्या है कि इस जहान के खुदा ने, जो इस जहान का खुदा है, कायनात का खुदा नहीं, कहकशां और गैलेक्सीज का खुदा नहीं, जो गैलेक्सीज का, कहकशां का, पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, वो कहता है मैं तुझे हिकमत सिखाता हूं, मैं तुझे हिकमत देता हूं, मैं तुझे गहरी बातें बताता हूं, तुझे तह की बातें बताता हूं। लेकिन जो इस जहान का खुदा है, सिर्फ इस जहान का, मेरी बात समझ रहे हैं ना, इस जहान का खुदा जो है उसका काम क्या है? आंखों को अंधा करना, नूर ले लेना, तारीकी कर देना, क्योंकि वो तारीकी की कुव्वतों का मालिक है। तारीकी उसी से सादर होती है, अंधेरा उसी से आता है, ला इल्मी उसी से आती है, बेवकूफी नदानी उसी से आती है, लापरवाही उसी से आती है, मलावट उसी से आती है, झूठ उसी से आता है, लालच उसी से आता है, खून रेजी उसी से आती है, बदकारी बदफेली उसी से आती है। अब जो कोई है इसमें इन्वॉल्व, वो खुद देख सकता है। शहद पे आप जहर लिखें तो वो शहद ही रहेगा, और जहर पे आप शहद लिखें तो वो शहद नहीं बन सकता कभी भी। मौत हो है, खुदा तो उसका नाम है लेकिन है तरीकी का, खुदा तो उसका नाम है लेकिन है मौत का। इसलिए मेरे अजीजों, अपना राबता शुरू कर दें। खुदा ने आपको मददगार फरिश्ते दिए हैं, खिदमत गुजार रूहें दी हैं। इसका पैटर्न बाइबल से मिलता है। पतरस से देख लें, समसून से देख लें, दाऊद से देख लें, जितने भी मुकद्दसीन हैं आप उनसे देख लें कि उनके पास फरिश्ते आ रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। ब्रदर बख्त सिंह की बात मैं करता हूं, मैंने सुना था क्योंकि मेरे बुजुर्ग भी खिदमत में थे, हमारा पूरा खानदान खिदमत में था और है, मेरे बेटे भी खिदमत में हैं, अब आगे उनके बच्चे भी खिदमत में हैं। अभी वो छोटे हैं लेकिन वो भी लगे रहते हैं, गीत गाते हैं, आयतें याद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तरीकी के खुदा की तरफ चले गए तो वो अंधा कर देता है, और अगर रोशनी के खुदा की तरफ आ गए तो वो रोशन कर देता है। मकाशवा की किताब उसके 22वें बाब में आप पढ़ के देख ले, मसीह कहता है मैं हूं जो रोशनी देने वाला। यूहन्ना की इंजील में पढ़े तो मसीह कहता है मैं नूर हूं, जब तक मैं हूं मेरे साथ साथ चलो, नूर में रहो। उसकी पहचान नूर है, उसके कपड़े नूर है। मकाशवा की किताब में उसके कपड़ों से नूर निकल रहा है, उसके कपड़ों को कोई छू ले तो उसमें से शफा निकलती है। उसका निशान नूर है, वो सफेद लिबास है उसका, वो नूरों का बाप है, नूर उसी से सादर होता है। तो हम इस बात में फिक्रमंद हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं कि वो नूर की तरफ रहें। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। अगर अपने बच्चों को आयतें याद करवाते रहेंगे, उनको घुटने टेकने का तरीका सिखा देंगे, उनको झुकने का तरीका सिखा देंगे, उनका ताल्लुक नूर के साथ हो जाएगा, नूरानी फरिश्ते उनकी प्रोटेक्शन के लिए आ जाएंगे। खुदा हमारी मदद करता है, खुदा हमारे साथ चलता है। खुदा एडा वेला नहीं, खुदा ने अपने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और उन फरिश्तों के साथ आपको चलना है। ये बाइबल बताती, मैं बाइबल से एक लफ्ज भी बाहर नहीं बात करूंगा। अगर किसी को नहीं पता तो मेरे साथ बात करे, क्योंकि खुदा ने कौम बनी इसराइल को कहा ध्यान से चलना, मेरा फरिश्ता तुम्हारे साथ साथ चलेगा। अगर तुम दाएं बाएं ऐसे हो गए, वो माफ नहीं करेगा, फड़का के रख देगा। अगर आज भी कोई पादरी, कोई बिशप, कोई पखंडी चल रहे हैं इस तरह के, जो खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं, आप देखेंगे अपनी आंखों से कि उनके आपकी आंखों के सामने क्या हाल होता है। क्योंकि बड़े एहतियात से चलना है,
बड़े ध्यान से चलना है, बड़ी समझदारी से चलना है। अगर बोंगियां मारनी है तो फिर चले जाओ तारीकी के खुदा की तरफ, जैसे मर्जी चलते रहो, कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो वक्ती है, ताइदलिक है, बाद में तो तबाही है। ना उसने रहना ना उसके फॉलोअर ने रहना है। वो भी तारीकी की गारों में जाएगा, उसके मानने वाले भी तारीकी की गारों में जाएंगे। उसके मानने वाले अगर लालची हैं तो वो और लालच को बढ़ा देगा, काम नहीं करेगा। अगर वो उसके मानने वाले बदी में है तो उनको और बदी के मौके दे देगा। अगर उसके मानने वाले चोर हैं तो उनको और चोरी करने के लिए मौका देगा। अगर उसके मानने वाले ठग हैं तो और उनको ठगियां सिखाएगा। अगर उनके मानने वाले कातिल हैं तो उनसे और कत्ल करवाएगा। लेकिन जब आप नूर की तरफ आ जाएंगे तो आपसे गलती हो जाएगी तो वो रात को सोने नहीं देगा, कहेगा तूने गलत किया है, माफी मांग, आइंदा से नहीं करना, क्योंकि वो नूर है और नूर तारीकी में चमकता है। नूर तारीकी के कामों को उजागर करता है, दिखाता है, देख ये तूने क्या किया है। इंसान के अंदर खुदा का नूर ज़मीर है। खुदा अपने लोगों के ज़मीर को मरने नहीं देता, और अबलीस तारीकी का खुदा, इस जहान का खुदा किसी का ज़मीर जागने नहीं देता। उसका काम ही यह है कि मत मारी रहे। जैसे नशेई को सूटा लगाते रहो तो वो आंखें नहीं खोलता, अबलीस ऐसे सूटे लगवाता है कि आंख ही ना खुले। इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, ऐसे सूटे पिलाता है कि वो नशे से ही नहीं निकलते। किसी को किसी चीज का लालच, किसी को किसी चीज की हिर्स, किसी को किसी तरफ लगा दिया, किसी को कहा लूट ले जितना मुल्क को लूट सकता है, लूट ले लोगों को जितना लूट सकता है, ठग ले जितना लोगों को ठगा जा सकता है, भले दे यकी पे ठग, भले शफा के ढोंग बना, भले लोगों को गिराने का तरीका कर, भले लोगों को गैर ज़बानें सिखा, भले लोगों को कुछ कर, कुछ ना कुछ कर ताकि तेरे पास कुछ हो। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जिनका नूर के साथ ताल्लुक है, वो ऐसा नहीं करते। उनका भरोसा, उनका कल, उनका आज, उनकी हर दिन की फिक्र उनके खुदा के लिए। अपनी सब फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है, वो तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। ऐ मालिक मैं तुझे जानता हूं, जहां तू नहीं बखेरता वहां से इकट्ठा कर लेता है, और जहां नहीं बोता वहां से तू काट लेता है। वो कुदरत का माल, तू सब्बत को मान, मैं तुझे छठे दिन इतना दे दूंगा कि तू 7वें दिन भी खाएगा, 8वें दिन भी खाएगा। जो सब्बत के फरिश्ते हैं वो आपकी हेल्प के लिए हैं। इसको मजाक ना समझें, आप सब्बत मानना शुरू कर दे, क्योंकि ये खुद खुदा ने कहा है। ये किसी एलियन ने, किसी फरिश्ते का पैगाम नहीं है। ये खुदा का जो अव्वलो आखिर है, जिसने इस दुनिया को, कायनात को बनाया है, वो कहता है तू सब्बत का दिन पाक मानना, फिर बरकत देख, फिर काम देख मेरे। सिर्फ बात मानना है, और अगर नहीं मानते तो फिर सदूम देख कैसे पलट दिया, और फिर और मुल्कों को भी देख लो। और जो जो उनको मानते और उनकी ताबेदारी में रहते हैं, उनकी बरकत देख लो। छोटा सा मुल्क है इस्राइल, पूरी दुनिया पर हाकम है, पूरी दुनिया पर। इवन इंग्लैंड, अमेरिका भी उनकी उंगलियों पर चलते हैं, क्योंकि वहां पर एलियन फरिश्ते चलते फिरते हैं, ऐसे जैसे आम लोगों की कॉलोनी होती है। यकूब सोया है तो फरिश्ते ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं। यसुमसी आसमान पर जाने वाले हैं तो फरिश्ते कह रहे हैं कि वो जिस तरह तुमने ऊपर जाते देखा, इसी तरह आते भी देखोगे। मसीह की कब्र पे फरिश्ते हैं, पतरस के साथ जा रहे हैं, शमसून के साथ जा रहे हैं, दाऊद के साथ जा रहे हैं, सुलेमान के साथ जा रहे हैं, जदाऊन के साथ जा रहे हैं, बरक के साथ जा रहे हैं। किस किस का जिक्र करें? मूसा के साथ जा रहे हैं, यशुआ के साथ जा रहे हैं, यरीहो की दीवारें गिरा रहे हैं, यरदन के पानियों को 2-2 हिस्से कर रहे हैं। तो ये कैसी बात है? और आप उस मुल्क के बारे में मुंह बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे? अपना ही नुकसान उठाएंगे।
अपना ही नुकसान करेंगे। खुदावंद आपको समझने की तौफीक दे और अपने